Okay, sir. Next, so there are, right on, there are two types of projectile motion. First one, write down. First one, horizontal projectile motion. Okay. Okay, sir. Horizontal projectile motion. Right. Write down. So horizontal projectile motion means you are throwing the body from certain height. Okay. So this is the ground. You are throwing the body from certain height, right? From certain height means what? From the top of the projector, from the top of the tower also. Clear? Hello? Yes, sir. I'm listening. From the top of the tower also. So when it is thrown, and before we discuss this one, once you tell me what are the equations of motion when body moves along straight line? Okay, sir. First one was b square minus u square equals 2as. Right, that is third one. V square minus u square equal to 2as is third one. Second one? Okay. S is equal to ut plus half at square. Ut plus half at square. First one? Yes, sir. First one. V is equal to u plus at, correct? V is equal to u plus at, and fourth one, Sn is equal to Sn equal to half ut plus Sn equal to u plus a of n minus half. Of course, we don't require that now. We don't require. It is there, but we don't require. It is there, but we don't require. Same equations. Let us try to write when body moves along x-axis. Vx, final velocity along x direction. Ux, initial velocity along x direction. Ax, acceleration along x direction. Got it? Okay. Then yes, how to write S? Displacement along x-axis. Velocity along x-axis. T. Ux t Half. plus half ax t square. T square. Third. Bx square minus ux square Is equals to 2x sx. Ax xx. Is it right? Yes, sir. These are the same equations along x-axis. Now, how to write same equations when body moves along y-axis? Because we are talking motion in plane. Am I right? Yes, sir. We are talking motion in plane. So therefore, tell me, how do we write along y-axis? Same sir, खाली x की जगह y लगा देना. ठीक है. Vy, final velocity y direction. Initial velocity y direction. Uy plus a. ठीक है. So second equation कैसे change होगा? Sy is equal to uy t plus half ay t square. ay t square हो गया. ठीक है. Third, vy square. ठीक है. vy square minus uy square equals to 2ay sy. Yes, right. Now see, coming back to the concept, body thrown from certain height h with initial velocity ux equal to u. Okay, ux equal to u. Body moves in the parabolic path. Is it right? Body moves in the parabolic path, right? Yes, and finally hits the ground. Correct? yes, sir. Right on the center. Final velocity will be 0. एक minute. This is the direction of velocity. So there will be component Vx, there will be component Vy. समझ गया? Okay. बीच में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दे दिया है ना, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा नहीं रहेगा?
अपने इनिशियल रहेगा ना वेलोसिटी सर? दे दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी आपने दे दिया, लेकिन will it possess acceleration in x direction or not? No sir. क्यों? आंसर इज राइट, करेक्ट. Why? Because only velocity changes, but acceleration it remains constant. नहीं नहीं, velocity is not changing here. Velocity changing means what? खाली डायरेक्शन हो, खाली मैग्नीट्यूड हो, समटाइम्स मे बी दोनों हो, समझ गया? Then only body possesses acceleration. Write down. In horizontal direction, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. In horizontal direction, Okay. projectile do not possess acceleration. Acceleration मतलब क्या है? ax0 लिखना है. Horizontal direction, projectile do not possess acceleration because there is no change in magnitude and direction of velocity. So ux equal to u आपने लिख दिया, लेकिन u आपने दे दिया है ना, x डायरेक्शन पर u आपने दे दिया, लेकिन since there is no change in the direction and magnitude of velocity, acceleration ax0 हो गया. ठीक है. एक और क्वेश्चन, वर्टिकल डायरेक्शन में आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, नहीं दे दिया? रहते सर. दे दिए क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे दिए क्या? ओके, वर्टिकल डायरेक्शन पूछ रहे सर आप? हाँ, नहीं रहते. ठीक है, यू वाई जीरो कर सकते हैं ना, हाँ, UY0. लेकिन पाथ नीचे आ रहा है, वो तो क्या क्या रीजन है? क्या रीजन? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी ना, समझ गया? हाँ सर. हर जगह पर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थ, इज इट राइट? अर्थ अट्रैक्शन. तो अर्थ अट्रैक्शन कैसे समझना है? जी है ना, ड्यू टू ग्रेविटी इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन, समझ गया? ओके सर. सो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन पर रहता, बिना वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन, बिना वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन विल बी देयर इन वर्टिकल डायरेक्शन. क्यों ऐसा? बिकॉज बॉडी मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, समझ गया? हाँ सर. ठीक है. अभी सो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन इज परमानेंटली नेगेटिव, है ना? एक्सेलरेशन परमानेंटली नेगेटिव, राइट? इसके बाद ओके, राइट डाउन. यस सर. Okay, suppose when particle comes here मतलब particle is at point P. When particle is at point P, horizontally it travels distance x, vertically also it travels distance x because body moving in the plane. See, when it touches ground, vertical distance हो जाएगा h हो जाएगा, horizontal distance हो जाएगा, range हो जाएगा, समझ गया? We are talking, still it is in air, समझ गया? We are talking only at point P. Until it comes to point P, it travels horizontally distance x, vertically distance y. ठीक है? ओके सर. राइट. एक ही इक्वेशन लेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन. So let us take sy is equal to y, that is less than height of the tower. ठीक है? ये y कैसे हो गया? g हो गया वर्टिकल में. हाँ सर. इनिशियल वेलोसिटी आपने दे दिया क्या? नहीं दिया. हाँ सर. समझ गया? Now you take sy is equal to uyt plus half ayt square. ठीक है? नीचे आ रहा है बोले तो sy लेना है y, लेकिन माइनस, समझ गया? बिकॉज इक्वेशन वो साइन कन्वेंशन का बात है. uy0, ay माइनस जी आपने ले लिया, समझ गया?
हाँ सर, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल। ओके। y इज हाँ, इक्वल टू y इज इक्वल टू g आप लिख बाई सकते टू हैं, y टी इक्वल स्क्वायर, टू हाफ, g बाई टू या टी। ये तो g हो गया, g हो गया टी स्क्वायर, ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 1। अभी ले लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने क्या ले लिया, एस एक्स इक्वल टू एक्स, बट दैट इज लेस देन रेंज। रेंज, यस सर। लेकिन आपने ले लिया ए एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0, हाँ। यू एक्स इक्वल ux टू, इक्वल्स टू u, आपने ले लिया, ठीक है। हाँ सर। Once again you take Sx equal to uxt plus half ax हाफ t square, ax समझ गया। टी स्क्वायर, हाँ सर। तो Sx लिखना है x, ux तो u हो गया t, ये तो ax टी 0 प्लस हाफ, हाँ जीरो, लिखने वो की पूरा जरूरत नहीं जीरो हो है, जाएगा। हाँ, x by u है हाँ, ना। हाँ सर, x तो बाई। सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस टेकिंग प्लेस, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस टेकिंग प्लेस, ये तो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मान लो। तो 2 in 1 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो y इज इक्वल टू हाफ g, ये तो x by u लिख सकते x हैं बाई आप। यू स्क्वायर, हाँ। तो y is equal to half g x square by u square. This is where, this is after time t seconds but less than time of descent. ओके, पहले ये लिख दो, डायग्राम खींच ले क्या। हाँ सर। ओके सर, लिख लिया डायग्राम। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन लिख दो। हाँ लिखो। राइट, ओके सर। अच्छा सर, ये जो इक्वेशन है ना, ये सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट से, अगर नॉर्मल टाइम कम रहा तो ही यूज करना है। हाँ, टाइम ऑफ डिसेंट मीन्स बॉडी विल टच द ग्राउंड, वी आर टेकिंग व्हेन इट इज इन द हम्म, एयर, ठीक है। ओके। वो भी वो वही टाइम आएगा, पे ये वही इक्वेशन यूज वही करना है। इक्वेशन भी आएगा, एक मिनट, थोड़ी थोड़ी देर मतलब इंतजार करो, वही इक्वेशन भी आएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी अभी क्या करना है, velocity of the projectile लिख दो, ओके सर। velocity of the वेलोसिटी projectile, ऑफ प्रोजेक्ट। projectile, velocity of the projectile after t seconds, after t seconds मतलब टाइम ऑफ डिसेंट है, ठीक है। हाँ सर, कि- 30 से। in which plane it is like this, it will be like this, समझ गया। हम्म, आप immediately see, you are throwing a t equal to 0, after t seconds less than time of descent it may be at point p, तो इसका Vx रहेगा, Vx मतलब Ux प्लस Ax लिखने के बाद Ax तो 0 है, तो बच गया Vx इक्वल टू काली यू, ठीक है। हम्म, वर्टिकल डायरेक्शन में Vy रहेगा, लेकिन Vy लिखना है Uy प्लस Ay लिखना है, समझ गया। हम्म, हाँ लेकिन सर। आपने नहीं दिया Uy, तो उसी लिए Vy इक्वल टू आपको काले मिल जाएगा Gt, जीटी, हाँ। है ना। ठीक है, वर्टिकली हाँ, डाउन मतलब Vy ने माइनस दे सकते हैं, Ay को माइनस जी परमानेंटली, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, Vy इक्वल टू Gt मिल जाएगा। हम्म, सो अभी Vy आपको मिल गया Gt, Vx मिल गया U, है ना। सो अगर हम्म, पैरेललोग्राम इस्तेमाल करें तो Vx मुझे बोल दो, Vx का Vy का बीच में एंगल कितना है। 90 डिग्री। 90 डिग्री। पैरेललोग्राम कैसे लिख सकते हैं, अगर पैरेललोग्राम इस्तेमाल करें तो 90 डिग्री बोले तो, पैरेललोग्राम एक बार मुझे याद दिला दो। पैरेललोग्राम में क्या रहता, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 AB cos थीटा रहते ना। हाँ सर। सो सी का जगह पर रिजल्टेंट लिखना है,
ए या का जगह पर वी एक्स लिखना है, बी का जगह पर वी वाई लिखना वी है, स्क्वायर ठीक है। प्लस वी वाई स्क्वायर लेकिन थीटा प्लस 90 है ना, हाँ सर। थीटा 90 बोले तो बाकी जो टर्म रहता ए अरे बी का ये भी का कॉस जीरो हो हाँ जाएगा, शुरू हो हाँ। जाएगा। समझ गया। ओके सर, डन। तो अभी वी एक्स कैसे लिखना है, यू खाली यू मिल गया आपका, यू वी एक्स का है ना, हम्म। वी वाई का क्या मिल गया, जी टी मिल गया, जी टी, ठीक है। तो यू ये स्क्वायर स्क्वायर प्लस है, जी टी स्क्वायर। जी स्क्वायर टी स्क्वायर मिल जाएगा। ये तो हाँ जी रिजल्टेंट स्क्वायर। वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट ए टाइम लेस देन टी डी, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसके बाद एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल, एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकंड, मतलब वन सेकेंड लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। एंगल लेना बोले तो टैन थीटा, टैन थीटा मतलब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आने के बाद एक्स एक्सिस तो करेगा, थीटा करेगा, एंगल तो कुछ करेगा ना। हम्म। हाँ एंगल लेना बोले तो, एंगल लेना बोले तो वर्टिकल 45। कंपोनेंट, एक मिनट वर्टिकल कंपोनेंट लेने के बाद नीचे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हाँ तो आपको वी वाई क्या ले लिया, जी टी है, जी टी, हाँ ये वी एक्स सिर्फ यू यू होगा, है। ठीक है। क्वेश्चन कैसे रहते वो मेंशन करेगा टी और यू वैल्यू, आपको पूछेगा हम्म। थीटा वैल्यू कितना आफ्टर टी सेकंड। हम्म। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे तो भी यू वेलोसिटी दे देते, टी टी वैल्यू दे देते, यू का वैल्यू दे देते, टी का वैल्यू दे देते। आपको पूछते दे लास्ट यू टू फाइंड आउट वी आर। हम्म। समझ गया। हाँ सर। ठीक है अभी लिख दो, ये दोनों लिख दो। क्वेश्चंस है, इसके ऊपर क्वेश्चंस है। ओके सर। मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस है। हाँ सर, ठीक है, लिख लिया मैं। ठीक है इसके बाद आप when आप अब तक टी लेस देन टाइम ऑफ डिस्टेंस पर आपने डिस्कस किया। अभी टी इक्वल टू टी हाँ, डी पर लिख दीजिए, टी इक्वल टू टी डी विच मीन्स व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। इक्वल्स टू टी डी, ओके सर। टचेस द ग्राउंड मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे लेना, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा एस वाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर ट्रैवल करेगा। हम्म। मतलब ग्राउंड टच होने के बाद, ग्राउंड टच होने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पूरा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर टावर ट्रैवल करेगा। हाँ सर। टाइम ऑफ डिस्टेंस मतलब क्या है, पूरा टाइम, हम्म। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में पहले आपने ले लिया भाई एस वाई इक्वल टू वाई, लेकिन लेस देन एच। अभी एस वाई इक्वल टू क्या लेना है, एच लेना है, एच होगा, एस एच वाई होगा। इक्वल्स टू एच। समझ गया। तो ए वाई इक्वल टू कैसे, तो भी माइनस जी, माइनस जी। टाइम होगा टाइम ऑफ डिस्टेंस। अभी लीजिए एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस यू वाई टी, सॉरी एस वाई प्लस इक्वल टू यू हाफ वाई टी ए प्लस हाफ यू टी ए वाई प्लस टी। हाफ ए टी हाँ वाई स्क्वायर। कमिंग डाउनवर्ड्स मतलब एस वाई होगा माइनस एच, यू हाँ वाई आपने माइनस ले लिया एच। जीरो, हाँ ए हाँ, वाई वो होगा पूरा जीरो हो माइनस जी, जाएगा, प्लस माइनस जी टी स्क्वायर। टाइम ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, माइनस टाइम ऑफ माइनस डिस्टेंस। कैंसिल, तो ओके एच सर। इज इक्वल टू नाउ एच हाफ इज जी इक्वल टी टू डी। हाफ जी टी डी स्क्वायर। ठीक है ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में। अभी हॉरिजॉन्टल ओके सर। डायरेक्शन में लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट टी इक्वल टू टी डी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट टी इक्वल टू टी डी। समझ गया। ठीक है हाँ सर। एस एक्स इक्वल टू अभी क्या लेना है, रेंज लेना है, पूरा डिस्टेंस, पूरा हम्म। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यू एक्स है आपने दे दिया यू, लेकिन ए एक्स जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम्म। समझ गया। सो अभी क्या हाँ सर। लिखना है, एस एक्स इज एस इक्वल टू एक्स यू इज एक्स, इक्वल टू यू एक्स टी। टी टी बस। कुछ नहीं होगा, हाफ और ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन ए एक्स जीरो होने वजह हाँ सर, से, वो तो जीरो हो जाएगा। हाँ। ठीक है। एस एक्स कैसे लिखना है, रेंज लिखना है, रेंज इज यू इक्वल एक्स टू इक्वल टू यू, यू टी डी। ठीक है। ए पहले इक्वेशन में टी डी कैसे लिख सकते हैं, टी डी इक्वल टू टू एच बाई जी अंडर रूट लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ सर। ये तो पहले इक्वेशन में, दूसरा इक्वेशन समझो, पहले इक्वेशन दूसरा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद रेंज इक्वेशन क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू
u अंडर रूट 2h/g। समझ गया? ओके सर, लिखिए। इसके बाद ठीक है, आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टीडी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आफ्टर टाइम ऑफ डिसेंट कैसे लिखना? हाँ, टाइम ऑफ डिसेंट होने ग्राउंड टच पर, इज इट राइट? व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये तो रिजल्टेंट है। वी एक्स वी वाई के बीच कितना एंगल रहेगा? फिर भी 90। समझ गया? हाँ सर। ठीक है, वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम ऑफ डिसेंट। So once again you have to write Vx square plus Vy square। Vx कैसे तो भी u होगा, है ना? Ax तो 0 है ना, हाँ ये तो u स्क्वायर। लेकिन Vy होगा GTD लिखना है। इससे पहले आपने लिख लिया, खाली t लिख दिया। क्यों ऐसा? हाँ। तो टेकन लेस देन TD। अभी हम्म। TD पर डिस्कस कर रहा है ना? हम्म। तो इसीलिए आफ्टर टाइम, टोटल टाइम होने के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अभी मेड बाय एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल आफ्टर TD मतलब when it touches the ground। तो tan theta is equal to, अभी भी लिखना है Vy by Vx, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट GTD, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट U। GTD by U। So they ask question even like this also, mentioning the time, mentioning the initial velocity horizontally। ठीक है, ठीक। अभी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक मिनट। एनसीईआरटी पर एक क्वेश्चन, ओके सर, नो एनसीईआरटी प्रॉब्लम, कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में हाँ क्वेश्चन सर, पहले एनसीईआरटी के बता दो। क्वेश्चन कर दो, 4.8 कर दो। Okay, sir. 4.8. हम्म, A hiker stands on the edge of a cliff 490 meters above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed 15 meters, neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and speed which it hits the ground. ओ सर, इसमें अपने को वो फॉर्मूला यूज करना है, टाइम ऑफ डिसेंट का इज इक्वल बस टू √2/g। बस। ठीक है सर, कर रहा हूँ मैं प्रॉब्लम। करो। √2h/g 2 into 490, 490 to the 9 to the 18, 8 1 4 to the 8 9 980 by 9.8, 9.980, 0 cancel, 98 1। ओके सर, टी आ गया 10 सेकेंड्स। हाँ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में उसके बाद फाइंड द फाइंड द टाइम टाइम टेक। टेकन, ये हो गया, 10 सेकंड्स आ गया। लेकिन उसके हाँ बाद सर, ये तीसरा तो होगा क्वेश्चन, ना। स्पीड व्हेन इट And टचेस the द ग्राउंड। speed with which it hits the ground. Oh, तो रिजल्टेंट speed वेलोसिटी पर, में रिजल्टेंट। resultant। तो सर वो फॉर्मूला यूज करना ना, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ ये यू स्क्वायर प्लस GTD स्क्वायर। बस बस वही है। ओ सर, यू स्क्वायर 15 दिया हुआ है ना, √15 स्क्वायर प्लस G10 इंटू TD 10 सेकेंड्स। 10 बस सो
15 square 16 into 15 225. Okay, 225 plus 100. 10 tens are 100. 100 into 10 1000. So 26. So root सर मेरे को आंसर तो रूट 2025 आ रहा। हाँ 2025 एक बार चेक कर लेंगे। आपको दे दिया वी एक्स मतलब ए एक्स कैसे तो भी नहीं रहता, तो यू ही लेना है, यू स्क्वायर लेना है। यू स्क्वायर कितना दे दिया, 15 दे दिया, बोले तो यू स्क्वायर कितना होगा 225 है ना। हाँ सर। जी तो 10, टाइम ऑफ डिस्टेंस कितना 10 मिल गया into 10, 10 स्क्वायर। ये तो स्क्वायरिंग होगा है ना। ये हाँ तो सर। 100 स्क्वायर मतलब 10,000 होगा है ना, हाँ 10,000 विथ 225। तो 22,500। 10,225 मिल जाएगा है ना, ओ 10,000 है। है ना। लेकिन अगर 9.8 लिए तो पूरा ऐड करने के बाद 10,000 मिल जाएगा, 9.8 लिए तो। हाँ सर। 9.898 स्क्वायर होगा ना, 98 हाँ। स्क्वायर होगा, 98 स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर G10 लिए तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप लिख सकते हैं 10,225 है ना। हाँ सर। ये तो मतलब 10,000 के आसपास लीजिए लिए तो 100 आ जाएगा आंसर। 100 मीटर, 100 तो क्या है फार्मूला, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी फाइंड आउट करना बोले तो मीटर पर सेकंड। सी इट इज वेरी क्लोज टू 10,000 ओनली। जी अगर 9.8 लिए तो आपको क्या मिल जाए 225, 98 होल स्क्वायर, वो 98 होल स्क्वायर करना है पहले। हाँ 98 करने के बाद ये 225 ऐड किए तो वो 10,000 आसपास आ जाएगा, 10,000 थोड़ा सा कम, 10,000 आसपास, तो 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सही है 99। समझ गया, क्लोजर क्लोजर वैल्यू, हम नॉट टेलिंग एग्जैक्ट, क्लोज ओके सर डन। 99। ठीक है, मैं एमसेट में आपको एमसेट मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया ना। हाँ सर। हाँ मैं एमसेट में आपको होमवर्क दे देता हूँ एक मिनट। ओके सर। हाँ 40 सेकेंड। ओके सर मैं स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। 40 सेकेंड, हाँ 40 सेकेंड, इवन 43rd आल्सो। ओके सर 40 सेकंड खींच लिया 43rd। ओके सर डन। उसके बाद 46, 46 ठीक है सर। 46 और 49। 46 तो होगा 49। ओके सर। सर 64 ले लूं क्या? हाँ 60 कर लो, लेकिन मतलब 60 दे दे। इट इज नॉट प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, लेकिन नहीं नहीं ये दूसरा है, वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा रहा है। ओ वो हाँ ये ऑब्लिक दूसरा प्रोजेक्टाइल है मोशन दूसरा है। है। हाँ मैं खाली स्टार्टिंग का देखा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हाँ आप अब ये ले बॉडी। सकते, हाँ आप ये ले सकते, ओके सर डन। मतलब 71। हाँ
ठीक है, 1 मिनट, उसमें चेक कर लेंगे। और नीट में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। इसमें कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक सर? 1 मिनट, इसमें हॉरिजॉन्टल है लेकिन नहीं देख रहा हूँ मैं। हॉरिजॉन्टल का प्रोजेक्टाइल मोशन पर क्वेश्चंस है लेकिन नहीं, इसमें नहीं दिया, अब तक नहीं दिया। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे दिया है बोले तो डेफिनेटली समटाइम्स दे विल गिव, ओके, इन सम एग्जाम देयर इज पॉसिबिलिटी। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी यस। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन मतलब दे दिया बोले तो मतलब चांस रहता। हाँ ठीक है। हाँ अभी 1 मिनट, ये क्वेश्चन कर दो। कौन सा? कौन सा सर? ये वाला 49 कर दो। 49. A body is thrown horizontally from the top of the tower of 5 meters high. If it touches the ground at the distance of 10 meters from the foot of the tower, the initial velocity of the body is. Okay, तो अपन को इसमें u फाइंड आउट करना है। ओ तो सर इसमें अपन रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रेंज का इज इक्वल टू u रूट 2h/g। ओके सर, डन। ट्राई कर दूं। u कितना दे दिया, 5 और रूट 2 इंटू 5 हाइट है। ओके, u फाइंड करना है y 5/g, g10 u लेंगे। ओके, which is equal to u into 10 10/10 1। अरे रूट वन क्या होगा सर? नहीं कुछ भी नहीं, नहीं, 10 आ इग्नोर जाएगा, कर दो देखिए सर। 10 देखिए, 10 देखिए। रेंज आपको कितना 10 है ना? रूट 1। हाँ 5 है। हाँ सर। स्क्वायरिंग करने के बाद 100 आ जाएगा, देखो आंसर 10 है, 10 मीटर है। एक बार देखो। कैसा सर? तो रेंज 10 दे दिया ना, हाँ। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। ओके ओके, समझ गया। ठीक है सर, अब भी करूँ। एज इनटू 10 ये तो लिख। है ना 5 है ना, नीचे 10 रहेगा। हाँ सर, ये तो वन नीचे भी रूट 10 वन आएगा। हाँ सर। रूट वन मिले दो, नहीं ये छोड़ सकते हैं, यू इक्वल टू 10 बस। हाँ सर, समझ गया। वो कंफ्यूज हो गया था मैं, रेंज की वैल्यू दी है कि नहीं दी रेंज। ठीक है, ओके सर, डन। अभी डिस्कस करना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ओके सर। मोशन। हाँ, पहले डायग्राम खींच लेना है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक projectile motion, right? So how the diagram will be, so just imagine you have a ball, you have a ball in your hand, you are throwing and you are practicing, is it right? You are throwing, someone catching, and someone throwing, you are catching, you are practicing. Just to imagine how the path of the ball will be, right? So the place, this is the vertical, the place where you stand.
This is the place you are drawing vertical. This is the place where you stand horizontal. समझ गया? So when it is thrown like this, so you have given, see, you are not always at the back of the ball. You are throwing in this direction. ठीक है? तो थ्रो करने के बाद मतलब फेंकने के बाद so body का पाथ कैसे रहेगा? So body touches these points and moves. Is it right? Finally reaches ground. ठीक है. लाइक रिप्ले आ जाएगा ना जब क्रिकेट मैच देखने पर, और रिप्ले कैसे कैसे दे देते सिक्सर मारने के बाद. हाँ रिप्ले वैसे ही रहता है ना? हाँ ठीक है सर. और इसके बाद सो वेलोसिटी आपने दे दिया. वेलोसिटी मतलब इज अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा. यहाँ पर रेजोल्यूशन रहेगा, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज फॉलिंग इन द प्लेन, इज एक्टिंग इन द प्लेन, है ना? वेक्टर इज एक्टिंग इन द प्लेन मतलब वेलोसिटी का असर जो रहे वो हॉरिजॉन्टल पर कैसे रहेगा? यू का थीटा जैसा रहेगा. तो रेजोल्यूशन है ना? हाँ हो सर. गया आपका रेजोल्यूशन का पार्ट हो गया. पैरेललोग्राम का पहले मैंने आपको बोल दिया ax इक्वल टू a cos थीटा. अब ये जगह पर u है ना, और वर्टिकल में कैसे रहेगा इसका असर, इसका इफेक्ट यू वाई जैसा रहेगा, लेकिन यू वाई लिखना है थीटा, ui is equal to u sin थीटा. u sin theta. तो अभी आपने वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू sin थीटा फॉर्म में दे दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू cos थीटा फॉर्म में दे u दिया. cos theta. ठीक है. ये तो समझो. यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए. So body reaches this point, body reaches this point, less than TD seconds.